Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear brother, we are going to the center of Frankfurt today because there is a planning for a demonstration against the rules or against the thoughts of the government that nobody can say any word against Israel and nobody has the right to support Palestine. But actually this demonstration is planned for Germany because there are some people who are just opposing foreigners, because in Germany there were some problems earlier that people, they were against foreigners. They don't like that foreigners come in Germany and live here. So today, in support of the people who are for the humanity, there is a big demonstration. And I have heard government has give some relaxation for the people who also want to say or demonstrate against the wilderness of Israel against Palestine. Because we have been listening that the government of Germany and in some provinces, it is not allowed to speak against Israel and support Palestine. It means in that sense that the crimes against humanity, children, women and other people have been bombarded. They have been attacked through bombs and guns and so this is not allowed in this world. So people are gathering there, maybe also in support of Palestine. How you say that, very innocent people. So we will be reaching there in 15 minutes and we will see some good scenes. Lieber Bruder und Schwester, heute ist eine Demonstration geplant im Zentrum von Frankfurt. Es wird dort vielleicht für die Humanität etwas gesagt oder gehört. Und ich glaube, hier ist vorne auch ein Problem, weil viele Autos sind, aber ich glaube, der Eingang in diese Richtung wird gesperrt, muss man schauen jetzt. Eigentlich diese Demonstration ist geplant gegen Rassismus. Rassismus ist so zu erklären, Leute in Deutschland oder weltweit, die gegen andere Menschen einfach Hassgefühle haben. Also die Leute, die Beispiel in Deutschland leben, Deutschen, und wenn ein Ausländer hier kommt, dass die hassen, warum sind die Ausländer hier gekommen. Da ist so eine Demonstration heute für ausländische Leute geplant. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज 5 फरवरी 2024 है और आज फ्रैंकफर्ट के सेंटर में एक बहुत बड़ा जो जुलूस तो नहीं कह सकते आप, इसको एक प्रोटेस्ट कह सकते हैं कि एक मुजाहरा, वो जो लोग गैर मुल्कियों के खिलाफ हैं, जो इंसानियत के खिलाफ हैं, जो कुछ हो रहा है फलस्तीन के अंदर, जो समझते हैं कि ये इसके खिलाफ बोलना जो है वो ठीक नहीं है, उसके इस फीलिंग के खिलाफ एक जो मुजाहरा है एक वो होने जा रहा है। तो हम इस वक्त फ्रैंकफर्ट जो फ्रीडबर्गर लांडस्ट्रासे, जो फ्रैंकफर्ट से साथ एक इलाका है बाद विल्बल, उस तरफ से जो सड़क आती है फ्रीडबर्गर लांडस्ट्रास, उस पे होते हुए फ्रैंकफर्ट सेंटर की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इतना ज्यादा रश है गाड़ियों का, और सबसे जो बड़ा मसला है इस वक्त वो ये, इन्होंने ये जो ट्रैक, ये आधा ट्रैक इन्होंने गाड़ियों साइकिलों वालों को दे दिया हुआ है और एक लाइन बना दी सिर्फ गाड़ियों की, यानी कि जो गाड़ियां यहाँ 15 मिनट में गुजर जाती हैं, अब उनको आधा घंटा लगता है इशारे पे खड़े होके आगे जाने में। इस तरह का जो प्लान कभी कभी ये होता है, मुख्तलिफ शहरों में स्पेशल इजाजत दी जाती है कि लोग
जो इकट्ठे हो के इसके खिलाफ मुजाहरा कर सकते हैं। जो जुल्म और ज्यादती इसराइल जो कर रहा है फलस्तीनी बेगुनाह बच्चों और औरतों के खिलाफ, अगर जंग है तो उसके असूलों के मुताबिक सिर्फ जंगी जो मुकाम है वहाँ पे हमले हों वहाँ, लेकिन वो बच्चों को और औरतों को और दूसरे बूढ़ों लोगों को बमबारी करके मारा। तो उसके खिलाफ इन्होंने बोलने पे पाबंदी लगाई हुई थी जर्मनी में। तो अब इनके ऊपर जो इतना प्रेशर पड़ा है मुख्तलिफ ममालिक, अब इन्होंने कुछ इसमें इजाज़त दी है कि जो लोग हैं वो इसके खिलाफ अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कितने को लोग वहाँ आए हैं। फ्रैंकफर्ट के दरमियान जहाँ एक मशहूर बाजार है साइल बाजार, तो वहाँ जाके अंदाज़ा होगा कितने लोग वहाँ मौजूद हैं। इस साइड से जो मोटरवे से गाड़ियाँ उतर के शहर में आती हैं वो है। फिर यहाँ आप देखें कि ये टैक्सी स्टैंड है और आगे जो शहर की तरफ जाने वाला रास्ता है, मेरा ख्याल है ज़्यादा रश वाला मुकाम जो था वहाँ से हम गुजर रहे हैं पीछे जहाँ, क्योंकि वो सड़क एक ट्रैक था। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के करीब होते जा रहे हैं जहाँ जाके हम वो जो प्रोटेस्ट है वो देखेंगे। 7-8 लाख की आबादी वाला शहर जो है फ्रैंकफर्ट, इसके अंदर जब शाम छुट्टी का टाइम, ये 5 बजे के राउंड छुट्टी का टाइम होता है, तो काफ़ी ज़्यादा रश जो है, ये देखें थोड़े टाइम के बाद जो ट्राम या ट्रेन जिसको आप कहते हैं वो वाली लेके सवारियां शहर से बाहर वाली साइड पर निकल रही है। तो देखते हैं आगे कितने को लोग इकट्ठे हुए हैं शाम के लिए। ये देखें साइकिल वालों को कितना रास्ता दे दिया हुआ है और एक ट्रैक छोड़ा है गाड़ियों के लिए। ये है आइंदा के हालात यहाँ यूरोपियन ममालिक में। लीजिए हम साइल बाजार जो बड़ा मशहूर है फ्रैंकफर्ट के अंदर, वहाँ पहुँच चुके हैं। और साइडों पे अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं स्टॉप्स के ऊपर खड़े हैं। लग रहा है कि वो जो ट्राम यहाँ चलती है, ट्रेन वगैरह जो, वो बंद है, सिर्फ बसों के जरिए जो है ना आज लोगों के इधर, जिसकी वजह से यहाँ रश है काफी ज्यादा। ये जी साइल बाजार के दरमियान में से जो सड़क गुजरती है, इसकी एक साइड पे भी इधर भी ये देखो रश, इतना रश है। लोग छुट्टी करके मेरा ख्याल अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से इधर बहुत ज्यादा जो है ना आप नजर आ रहा है। बाकी जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन है वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ को कितने लोग आए हैं। ले जी राइट साइड पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी अगर सीधे चले जाएंगे वो दरिया के ऊपर से क्रॉस करेंगे। सामने आपको फ्रैंकफर्ट की जो ऊंची बिल्डिंग्स जो हब है दरमियान में, वो इलाका नजर आ रहा है।